शूट कर रहे हैं? जी इस वक्त मैं रॉकी के लिए शूट कर रहा हूँ। आखिरी गाना है जो कि हम आज रैप अप करने वाले हैं और उनके साथ बहुत सारे मेमोरीज़ जो बीत गए हैं इस पिक्चर बनाते बनाते। तो एक तरफ से काफ़ी खुशी महसूस हूँ मैं और एक दूसरी तरफ से काफ़ी दुख महसूस कर रहा हूँ। एक बहुत ही 50-50 फीलिंग है। ये गाने की फिल्म पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, गाने को शायद बाद में इंकॉर्पोरेट किया जा रहा है फिल्म के साथ, कैसा लग रहा है? जी ऐसे ही लग रहा है कि पिक्चर में और हिमेश ने इतने अच्छे गाने दिए एल्बम के लिए कि हम ये सोच रहे थे कि यार कौन सा गाना शूट नहीं करना चाहिए और 6 में से 6 हम लोग सोचे कि यार 6 को शूट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक गाना बहुत ही खूबसूरती के साथ बनी गई है और बहुत पल्स है इसमें एंड there's अ ग्रेट फ्लेवर इन एवरी सॉन्ग। एंड जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं एल्बम में 1 या 2 गाने बहुत बड़े हो जाते हैं, मुझे लगता है हर एक गाना इसमें बहुत बहुत अच्छा है और उसके कारण हम लोग ये 6 जो 6 सॉन्ग हैं हम लोग ये भी शूट कर रहे हैं। इट्स जस्ट it deserves that. Himesh deserves that and this album deserves that and that's the only reason why we're shooting it. ज़ाहिद क्या प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में? रॉकी जो कि एक व्यक्ति का नाम है और वो किरदार में खेल रहा हूँ। रॉकी एक यंग ब्लडेड आदमी है, बहुत जोशीला है, जुनून है उसमें, पैशन है। वो एक यंग जनरेशन से आता है, उसकी आइडियोलॉजी जो है बहुत ही अलग है पिछले जनरेशन से और ही इज़ बेसिकली अ मैन दैट्स torn between his family, the person he loves and what he believes in, और उसके साथ क्या क्या अन्याय होता है और जिस तरह से वो उस अन्याय का सामना करता है। क्या ऐसा था इस स्क्रिप्ट में जिसने आपको हुक किया और क्यों एक्सेप्ट किया इस स्क्रिप्ट को? देखिए ये स्क्रिप्ट एक ऐसी अच्छी स्क्रिप्ट बनी गई है। फर्स्टली एक बहुत ही ओरिजिनल किस्म की स्क्रिप्ट है ये, कहाँ ना किसी फिल्म से कोई इंस्पिरेशन ली है या बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये बॉक्सिंग के ऊपर तो पिक्चर नहीं है, बॉक्सिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं है। ये कैरेक्टर ड्रिवन पिक्चर है और व्हाट ड्रोव मी टू डू दिस कैरेक्टर बिकॉज I felt that there are two different views between a generation that's our parents' generation and a generation that's us. Parents' generation being more passive, our generation being more aggressive, and the conflicts that happen because of these two different ideologies. And there's so many nuances and one can't explain, but only if you see the movie you'd understand uh, that these are genuine problems that kids are having today, with the way things work, probably with the system, with certain laws that they don't agree with, or certain things that people do that they don't agree with, and they take the law into their own hands. And this is a young blood talking, a blood that's not experienced the world like our parents have, and it's about the truth, and it's really fighting for that truth. And sometimes uh, fighting for the truth can get you very badly hurt. And I think Rocky is he defines that. He's the kind of guy who's very bullheaded, but you know that whatever he does might not be according to a very lawful manner, but it's the right thing to do, and it's that no compromise situation. So there are many conflicts in the character as well, which as the movie unfolds, you see how he's grown, but how much he's lost in trying to be as passive as one wants him to be, and finally what he becomes. So it's very relevant to current. जो भी बातें आपने बताई शायद हमारे डे टू डे लाइफ में होती है, किसी फिल्म के किसी एक सीन के बारे में बताइए जो आप थोड़ा वास्तव में रियलिस्टिक है, ये होता है, शायद आपके साथ में और शायद आपके किसी फ्रेंड के साथ। वेल एक सीन ऐसे भी है कि where Rocky gets into trouble with the law, but the law has manipulated the way in which it controls and holds the law, and that's funny. Being a person who upholds the law, you should not be able to manipulate it. And when the common man
tries to do the right thing at that point in time, they are booked और जेल में डालते हैं उनको. तो there are various issues like that expose one side of the system and talk about a lot of nice things about the system as well. And Rocky is the catalyst. So I wouldn't want to tell you the scenes because I think every scene is very specially crafted in a way that brings about an emotion that we all feel. So I wouldn't want to disclose that to you. आपके साथ दो आपके को स्टार्स भी हैं फिल्म में. जी. आप बताइए उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा. मनीषा से बात की शुरुआत की. मनीषा और ईशा दोनों इतने फ्रेश, टैलेंटेड, कमिटेड किस्म के एक्ट्रेसेस हैं जो कि बहुत ही फ्रेश एनर्जी लाते हैं सेट पे. एक वक्त ऐसे हुआ करता था कि जब मैं नया नया आया तो सब लोग बोलते यार जायद बहुत फ्रेश एनर्जी लाता है फिल्म को. और क्या होता है वो माहौल ही बदल जाता है जब वो एक इंथुजियाज़म पैदा होता है, मोटिवेट होते हैं लोग. क्योंकि यू नो इट्स ऑलवेज जैसे कि सब लोग बोलते हैं आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है उस पर, तो केमिस्ट्री ऐसे नहीं बनती है. केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन बनती है जब आप दोस्तों के समान मिलते जुलते, खाते पीते, बातचीत करते. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिसाइड्स बीइंग सीरियस, committed about your work, to have a good working environment. और मनीषा और ईशा दोनों, besides being very beautiful or and stunning, they're very nice people to work with and have a great disposition in life. So it's interesting. आपके किरदार उनके किरदार की क्या केमिस्ट्री है. Well, one girl I love and the other girl loves me, and it's not a love triangle though. I can't say it's a love triangle, but it's a tragic action love story. उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा. कभी ऐसा लगा कि इस डायरेक्टर ने कुछ चीज़ें की आपके अंदर जो एग्जिस्ट कर रही थी उसे ब्रश कर देने. देखिए सुरेश कृष्णन जी जो है इतने एक्सपीरियंस डायरेक्टर है, और जब मैं उनके साथ काम शुरू किया तो मैं बहुत ही मतलब जोश में आता था. ऐसे मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए. तो वो एक्सपीरियंस होने के नाते वो मुझे कंट्रोल किया, बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जायद देखो ये सीन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए और हमें क्या दिखाना है ये सिर्फ मुझे पता है, तो मुझ पे भरोसा रखना. तो जब डायरेक्टर ऐसे बात करता है एक्टर से तो एक्टर को बड़ा बहुत कंफर्टेबल लगता है कि यार एक आदमी है जो मुझे स्टीयर कर सकता है. शायद मैं इंजन हूँ लेकिन स्टीयरिंग जो शिप को स्टीयर करेगा वो डायरेक्टर है. तो दोनों मिलके ही आगे चल सकते हैं या एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं. तो दैट वाज वेरी नाइस फॉर मी बिकॉज आई केम इनटू द हैंड्स ऑफ अ गाय हु हैड experience with making sensitive films, had experience with making love, action. So he knew the anomaly of all emotions, the amalgamation of all emotions. And besides anything else, he never used to lose his cool. He was a very cool, calm, collected director. अभी अगर सेट पे अभी रोज़ हमेशा 10-12 प्रॉब्लम्स तो होते ही होते हैं, और कहीं डायरेक्टर्स बहुत एजिटेटेड होकर कि यार ये प्रॉब्लम नहीं होना था. Suresh ji, he never brings that problem to his actors. He'll control it in a way that आपको भी पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, और काम भी होगा अच्छी तरह से. तो it's an art to be a director like him. किसी भी दिन पूरे शूटिंग कभी रिलीज होने की जगह पे पहुंची है. किसी दिन शूटिंग के समय कभी ऐसा लगा लाइक कि चीज़ें अकॉर्डिंगली वर्क नहीं हो पा रही हैं, शायद प्रोडक्टिव नहीं है डे. कोई बंदे को एक्यूज नहीं कर सकते. प्रोडक्टिवनेस होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है चीज़. देखिए वो तो मुझे लगता है हर कोई काम में ऐसे दिन होते हैं कि यू डोंट हैव अ गुड डे, या कुछ अच्छी तरह से चल नहीं पाई, या वो स्टार्ट होने में देर लग गई. ये मुझे लगता है हर एक इंडस्ट्री में है. यही नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में होता है, और यू हैव टू लर्न टू टेक दैट इन योर स्ट्राइड, एंड दैट शुडंट डिबैकल यू कि यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर वर्क. जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा है, दैट्स अ मैटर ऑफ सर्कमस्टेंस. You accept the circumstance, you go above the circumstance, but it should never distract you. तो ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, होते ही रहते हैं. After all, it's a unit, it's a running unit, 70 people in and out daily. Everything has to be perfect. कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी वेदर के कारण, कभी कभी कोई बीमार पड़ जाता है.
So there are various problems like that, but the overall spirit is the most important thing, and the overall spirit in this movie has been fantastic. लाइक अब कहा जा सकता है कि काफ़ी वक्त गुजारा आपने फिल्म इंडस्ट्री के साथ, एक काफ़ी लोगों के साथ काम किया। श्याम बजाज ये बजाज इंडस्ट्री जो है बैनर जो है कहाँ रेट करेंगे प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए? श्याम जी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो ऐसे प्रोड्यूसर थे जो मेरी पहली पिक्चर के बाद साइन किया था, और जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी पहली पिक्चर बहुत ही अच्छी थी और बहुत लोग जाके देखें। तो उसके बाद मैं श्याम जी से दोबारा पूछा, श्याम जी आप सच्चे हो या पक्के हो, क्योंकि आपने शायद मेरा पहला पिक्चर देखा नहीं। लेकिन श्याम जी एक ऐसे कॉन्फिडेंट आदमी है, अगर उसने कुछ आप में देखा है, कुछ चीज़ देखा है, तो वो रास्ते से कभी हटेगा नहीं। और हालांकि 2 साल लगे प्रोजेक्ट बनाते बनाते, एक अच्छी प्रोजेक्ट जो हम साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन वो आदमी है मेरे लिए, वो आदमी जो मेरे साथ साथ खंबे की तरह खड़ा रह गया। और मैं क्या कहूँ कि दिल के करीब ही रहते हैं ऐसे आदमी। शूटिंग लंदन और बॉम्बे में हुई। अभी थोड़ी देर पहले हिमेश की बात हो रही थी जी। कहीं पर कभी उनके गानों में नजल साउंड होता है हमेशा, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि लिप सिंक करने में, सिंकिंग में कुछ परेशानी हो रही है? नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि लिप सिंक या इसमें परेशानी थी, क्योंकि आई फील हिमेश व्हेन ही सिंग्स, कहीं कहीं के आवाज़ बहुत अच्छे होते हैं और वो इतनी फीलिंग से गा नहीं पाते, तो वो मतलब कम्युनिकेट नहीं होता है। कहीं कहीं की आवाज़ कुड बी ओके, बट इतनी फीलिंग से गाते हैं कि द कम्युनिकेशन कम्स अक्रॉस, एंड दैट्स व्हाट आई फील अबाउट हिमेश. Not only do I feel that he has a voice that's becoming very good and very addictive to the audience, but I feel that he has great feeling. He means everything he sings, and he gets very emotional. Sometimes he cries while singing. So I mean, he's this feeling is very important in singing. So when I sing for Himesh, that's the feeling I'd like to evoke. I don't think about कैसे गाया, कि वो he sung this way or that way, मुश्किल है, ऐसे ये मतलब क्या है और क्या बोलना चाह रहा है ये आदमी, और उस नज़रिए से अगर आप देखो तो I don't think you can go wrong. कभी ऐसा फील हुआ है, आप क्या फील करते हैं कि बहुत बिग पर है, अभी सभी लोग उनके गाने सुन रहे हैं, बजा रहे हैं, डिस्को में, एफएम में, हर जगह चल रहा जी। है, कभी ऐसा लगता है कि बबल है जो बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाए? देखिए यार, बबल तो ब्लास्ट होते हैं लेकिन फिर से बबल आते हैं। तो ब्लास्ट होने का मतलब ये नहीं कि कपूट हो जाता है आदमी और उसके बाद कोई उसका गाना सुनेगा नहीं। ब्लास्ट होने का मतलब ये भी हो सकता है कि अब वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, शायद बंदे को अभी रेस्ट लेना चाहिए और 2 साल के बाद एक नया अंदाज से आएगा बाहर। तो इट्स एंड दैट कैन बी अ न्यू बबल एंड अ न्यू, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई फील हिमेश इज गॉट हिज पल्स, गॉट हिज हैंड ऑन द पल्स ऑफ द नेशन. I feel he is very committed to what he wants to do, what he wants to achieve in life, whether it's number one or having the most number of hits in a year. And this is a drive. You can't stop that drive and give it words कि यार इंटरनेट बबल की तरह ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, फिल्म बबल के साथ ब्लास्ट नहीं हो जाएगा. नहीं, ये एक पैशन है, एक जुनून है, वो कभी ब्लास्ट नहीं होती. शायद एक वक्त ऐसे आएगा कि लोग इतने हिमेश के गाने आएंगे कि बोलेंगे अरे यार यू शुड टेक रेस्ट. बट आई डोंट थिंक ही एवर गो आउट ऑफ स्टाइल. आई थिंक हिमेश ही इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. जैसे कि आई फील हिमेश इज़ अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक एंड ही इज़ नॉट कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ मास्टर्स येट. एंड whoever does that, he's always more passionate towards his work. The minute you consider yourself a master in what you do, then the bubble bursts. But if you don't consider yourself a master, even though you are one, then who knows, you can break the Guinness Book of World Record with that bubble. Shall we talk in Hindi? Yeah, you might. हिमेश के लुक के बारे में क्या कहना चाहें? जैकेट, कैप? वो उनका काम है यार. I can't say anything about that. मतलब जो भी उसको comfort है वो उसका है. शायद मैं परसों के ब्लास्ट की बात नहीं कर रही, लेकिन रिसेंट एक रिसर्च ने कहा है कि शायद बॉम्बे सबसे रूट सिटी है. कभी ऐसा कभी बॉम्बे सबसे सबसे रूट शहर है, सबसे बुरा शहर है. हाँ. कभी ऐसा कभी कंफ्रंट किया हो आपने? लास्ट जो मेमोरी बता
बुरा शहर प्रूव ना हो, हुआ है? हुआ है। um, देखिए ऑब्वियसली जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में थे, तब वो राइट्स चले तो उस वक्त कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा कि ये होना चाहिए था, क्योंकि मेरे इतने सारे अच्छे दोस्त हैं जो कि हम रोज़ मिलजुल के बांटते थे, खाते थे, खेलते थे। तो उस वक्त ज़रा अजीब सा लगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बम्बई एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे लगता है पूरी दुनिया में इस किस्म की जो मदद जो लोग देते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे मुझे लगता है पूरी दुनिया में इस तरह की एक्शंस मैंने कभी देखे नहीं। यहाँ के लोग जब क्राइसिस आता है, मैंने बहुत अच्छे से देखा, क्योंकि एक वक्त ऐसे था कि 26 जुलाई को पिछले साल मैं भी अटका पड़ा अंधेरी में, और मुझे तकरीबन 20-24 घंटा लगा वापस घर आने। और उस वक्त मैं यही देख रहा था कि यार पुलिस नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक नेशनल कलामिटी है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने देखा कि हर कोई व्यक्ति जो आमने सामने था वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और ये मैं एक चीज़ बोलूँ, जब एक नेचुरल कलामिटी होता है, आप शायद न्यूयॉर्क में जाओ, जैसे कि एक ब्लैकआउट होता है, तो सब लोग लूटने शुरू करते हैं, सब लोग क्राइम के तरफ चले जाते हैं। लेकिन बॉम्बे एक ऐसी जगह है जब आदमी को मदद चाहिए या आदमी कोई मदद की मांग में है, तो बहुत सारे लोग उसके आमने सामने आके मदद देंगे, हाथ देंगे उसे। वो एक ऐसी स्पिरिट है जो मैंने देखी नहीं, पूरी दुनिया में छान मारी है मैं पूरी दुनिया ट्रैवल किया हूँ मैं, लेकिन इस किस्म का जो भाईचारा है मैंने देखा नहीं है। और वो सबसे एक स्पेशल चीज़ है बम्बई की। सही, फिर से रॉकी पर आते हैं। क्या लगता है रॉकी में सेलिंग पॉइंट क्या है? रॉकी की स्टोरी, जाहिद का फेस, नाम, या फिर हिमेश रेशमिया, या फिर बैनर? आई थिंक इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ को मिलाकर अगर आप थोड़ा थोड़ा देखिए तो एक प्रोजेक्ट बनता है। तो मुझे नहीं लगता है कोई एक चीज़ के ऊपर सेल हो रही है। अगर हो रही है तो आई एम अनअवेयर अबाउट इट, बट आई विल सी आफ्टर द मूवी रिलीजेस। Thanks a lot for talking to us and wish you all the best for the success. थैंक यू वेरी मच।